हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईसी बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम पॉपुलेशन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट रिसोर्स करेंगे यानी जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, कोई भी बोर्ड हो, अगर उनके सिलेबस में जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन है तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इवन की जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईसी सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनआईसी सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, distribution of population. The here distribution of population. You may be knowing that is the resources, whether it's the nature and any other, are not even distributed. For example, natural resources like a forest or iron or is coal or is not found evenly in their world and also within our own country. The same is the case with the human resources. They are not evenly spread everywhere in the world and the numbers keep on changing. The spread of population over area may be in a state or the entire country is now as the distribution of population. You will find it is a very interesting when you look at the following map of India. It is shown how the population of India is spread across the various state and union territory, means UTs. This has been shown through the dots, and each dot represents 5 lakh person. There is a one dot here represent a 5 lakh person. As you see, in some state, the number of dots is less. Even if there is area of substantially larger, it means that the population is that this state is either widely spread or moderately spread. But in some other state, the dots are very close to be one to another. So close that this part is the map look almost painted. In them there is a spread of population every dense. Let us prepare a list of sparsely populated, moderately populated and densely populated state and union territory of India. On your screen there is a most important map here in the distribution of population 2001. You know that there is a most important map. To clear your mind, there is a population distribution of here. The numbers of dot is a 1 is a 5 lakh person. The many area here show that the population is very low. Like there is a important Jammu and Kashmir side, their population is very low. But there is a Gujarat side, some numbers, but there is a show here Kolkata, Bihar, Delhi, Punjab. There is a maximum population living in their side. There is the most important map on your screen. यहाँ पर जो हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है, जनसंख्या का वितरण। देखिए, जनसंख्या का वितरण कई कारकों पर डिपेंड करता है। लोग किसी भी क्षेत्र में प्रलयान कर जाते हैं, उनके कई कारण होते हैं, क्योंकि वो सुविधाएं देखना पसंद अधिक करते हैं। अगर हम करें जनसंख्या का वितरण का, तो कहते हैं साधारण चाहे प्राकृतिक हो या कोई अन्य, उनका वितरण एक सामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए जंगल या लो अयस्क या कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन दुनिया में सामान्य रूप से वितरित नहीं है, और हमारे अपने देश में वितरण में एकरूपता भी नहीं देखने को मिलता है।
मानव संसाधन के साथ भी यही मामला है। ये दुनिया में हर जगह सामान्य रूप से नहीं फैले हुए हैं और इनकी संख्या बदलते ही रहती हैं। एक क्षेत्र में आबादी का प्रसार को जनसंख्या वितरण कहते हैं, चाहे वो एक राज्य हो या पूरा देश। निम्न दिए गए भारत के मानचित्र पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिलचस्प सा लगेगा। ये दर्शाता है कि जनसंख्या का वितरण भारत में विभिन्न राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रकार से वितरित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। इस बिंदुओं द्वारा लिखा गया, यानी इसको बिंदु द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया गया है और बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बिंदु 5 लाख लोगों को प्रदर्शित करता है, यानी एक बिंदु 5 लाख को प्रदर्शित करता है। तो आप समझ सकते हो जितना डेंस होगा उतनी जनसंख्या अधिक होगी। आप देखेंगे कुछ राज्यों में बिंदु की संख्या कम है जबकि उनका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, और जिसका मतलब है कि उन राज्यों में जनसंख्या दूर दूर या साधारण जो है विस्तार है, परंतु कुछ राज्यों में बिंदु एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है। तो इतने करीब की मानचित्र द्वारा भाग बिंदु से रंगा हुआ सा लगता है। इनमें जनसंख्या का विस्तार बहुत सघन है और यह कम आबादी, मध्य आबादी और धन आबादी वाले राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों की एक सूची तैयार करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए मानचित्र को देखते हैं और बिंदुओं से पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या हो सकती है। ये जो आपके स्क्रीन पे मैप दिख रहा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। ये आंकड़ा तो 2001 की है, लेकिन अगर 2023 तक की बात करें तो ये आंकड़े बहुत ही चेंज हो चुका होगा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कुछ ही क्षेत्र में जो है डॉट डॉट जो है एक रंगे हुए रूप में दिख रहा है। यानी आप पंजाब देख ले, दिल्ली देख ले, कोलकाता देखिए, केरला देखिए, मुंबई देखिए, तो यहाँ पर डॉट ही नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर रंगा हुआ एरिया नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है। इवन कि जो बिहार साइड आप देखिएगा तो यहाँ पर बहुत काफ़ी घना डॉट दिख रहा है। एक डॉट का मतलब होता है 5 लाख। तो आप समझ सकते हो। और कहीं कहीं कितने क्षेत्रों में देखिएगा तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही विरल है, ठीक है, कहीं कहीं तो बहुत अधिक है और कहीं कहीं विरल है। तो ये मानचित्र भी बहुत बात समझाने के लिए पर्याप्त है, और इस मानचित्र से ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या का वितरण जो है एक सामान्य नहीं है। जैसे प्राकृतिक संसाधन का वितरण एक जैसा नहीं है प्राकृतिक में, उसी तरह जनसंख्या का वितरण भी एक सामान्य नहीं है। कहीं जनसंख्या अधिक है तो कहीं जनसंख्या विरल है। तो ये मैप काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Density of population, there is a most important topic here. Based on the above figure, a comparisons of population distribution in any two state will be quite interesting. Let us look at the state of Maharashtra and West Bengal in the map. The pattern of the spread of population in them are different. From the simple look at the map, it appears that West Bengal has a more population than Maharashtra. But it's not true. Maharashtra has a more population than West Bengal. But Maharashtra is a thinnest populated because its land area is large than that of West Bengal. Hence, we cannot compare to population situation of the two states in terms of only their number without considering their area. That is why the comparison of population of regions and countries is done through their density of population. The density of population is the number of persons is a live per unit of area. It is usually expressed as a number of people per square kilometer, and the formula is the composition is here. Density of population is equal to number of people in a defined area unit upon total area square kilometer of that particular area. There is a most important formula here, density of population. And from determine the density of number of people live in a specific territory is divided by the total area of territory. And this provides as an average number of persons living per square kilometer in territory. For example, let us assume that is a population of a district is a 2,50,000 and the area is a 1
1000 square kilometer. The density of population of a district can be calculated as following factor. The density of population here is important. The divided by here 1000. The 1000 divided has a 30 is cutting, but only here come to 250. The 250 is a per square kilometer person living in this area. There is a most important formula or calculate of density of population. On your screen, there is a most important map here. Population population density of India 2001. There according to 2001 there is number of person per square kilometer. You know that the less than 100 there is a most important area here. Arunachal Pradesh side and Jammu and Kashmir side, and there are maximum density is here 1001 there and above. There is maximum Bihar, Uttar Pradesh shown on your screen, and also the Kerala and Bengal. There is a Bengal. There is the most important, and the median is a 101 to 250. There is a almost Rajasthan, Madhya Pradesh, and other side here. This is the most important map on your screen. There is the population density. Examiner maximum time asks the question the low density and high density population. The next here factor in the distribution and density of population. There is a most important point here. Factor in the distribution and density of population. Why is the distribution of population uneven? Why? There is a most important. Why is the distribution of the population is uneven? It's a human nature that people like to live in their area where resources are easily available. There is human nature that people like to live in the area where resources are easily available. These resources may be fresh water, fertile soil, and food and shelter, the opportunity of work and other. There is a most important word here. There is a population here stay. There are water, fertility soil, food and shelter, the opportunity of work and other. The ability of resource is influenced by the geographical feature which are causing an uneven distribution, and therefore density and distribution of population are also uneven. We can divide the factor which factor distribution and density of population into two broad categories: physical and social economics. There is the most important social, economics and physical. Let's see first point here, physical factor. On your screen there are physical factor. Three important physical factors influence the distribution of density on population is namely relief, climate and soil. There is a physical factor. The first of all here relief. You may have a visit a mountainous area or valley, and also as a plain area is observed that the mountains are less populated than the plain. The relief which represents the difference in the elevations and the slope between to the higher and the lower part of land surface of given area directly affect the accessibility of the area. The area which are easily accessible are most likely to be inhabited by the people. That is why we find that is a plain or densely populated an area of rugged to the relief like a mountain and plateaus are not. If you compare the density and distribution of population in northern plain and those is the Himalaya area, you can find the effect of the relief. There is an important, first of all, the relief. On your screen, there is the most important here, factor in distribution of population here. The physical features is like that. There is a mountain, endogenetics of plant, and third desert. There is a most important factor in distribution of population here. The next point here, climate. Climatic condition is one of the most important factor which affect our density and population of distribution. The density, distribution of population and favorable climate provide a convenient is a living condition for human beings. The high density of population is found
in the area where the climate is favorable. But area which is a harsh climate, areas that are too hot, too cold, too dry and too wet have a lower density of population. In India, there are areas having dry climate such as Rajasthan and the area with extremely cold climate such as the valley in Jammu and Kashmir or Himachal Pradesh and Uttarakhand have a low density of population. And the next point here, soil. The human beings is a depend upon the quality of soil for agriculture. Area of the fertility soil can be therefore support a large population. That is why the region of fertility soil such as the available plain of northern India and coastal plain have a higher density of population. On the other hand, the area with a less fertility soil like a part of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh have a lower density of population. The next here, social economical factor. There's the most important point here, social economical factor. The density and distribution of population also depend on the flowing social economical condition of area. The first of all here, industrialization and urbanization. Industrialization and urbanization, as you will find the large number of people reside in the area having industries. They also prefer to be living in the urban area, town and cities. The area which are rich in the mineral resource also attract a large population. The mining area in Jharkhand are very densely populated, and this is so because this area support to the several economical activities and afford lot of employment opportunities. Moreover, their education and health facilities are better this area. We are aware that all the large cities of India like Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata and many more have a high density of population. There is a most important social economic factor like industrialization and urbanization. The next year, transport and communication. Transport and communication, there is a most important factor here. Some part of country have a better transport and communication facility and other public utilities service than their other part. Area of northern plain are very well connected, and there is a northeastern area have a comparatively poor connectivity. All such area where there are public facilities are well developed have a comparatively is a high density of population, and sometimes we find that a place of culture and religious significance are also densely populated. All the above mentioned factor operate in a combination. We can take the example of the high density population in the Ganga plain. It is causing by a combination of factor at the level land, fertile soil and favorable climate and industrialization and urbanization. And comparative well is a development mean of transport and communication. On the other hand, factor like rugged hills, terrain, uncomfortable climate and poor means of transport and communication together causing a low density of population in area like those of Arunachal Pradesh. There is the most important example here, Arunachal Pradesh. And Arunachal Pradesh, the maximum here is low density because there is a yearly rainfall on here. आगे जो हमारे समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है जनसंख्या का घनत्व। देखिए जनसंख्या का घनत्व काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि ऊपर दिए गए चित्रों के आधार पर किसी भी दो राज्यों के बीच जनसंख्या वितरण की तुलना में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि अगर हम दो राज्यों की तुलना करें तो एक में बहुत ही कम जनसंख्या होगा और दूसरे में अधिक जनसंख्या होगा। इसका कारण यही है कुछ चीज़ें हैं जो जनसंख्या को काफ़ी प्रभावित करता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए जनसंख्या का घनत्व के अंतर्गत तो ये काफ़ी महत्व रखता है। किसी राज्य में जो है जनसंख्या कम होगी तो किसी राज्य में जनसंख्या अधिक होगी। चलिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य जैसे चित्र में भी को ही देखें, इनमें जनसंख्या प्रसार का प्रतिरूप भिन्न है। सामान्य जन दोहराने पर लगता है कि महाराष्ट्र की तुलना करने पर पश्चिम बंगाल में जनसंख्या ज़्यादा है। देखिए महाराष्ट्र की तुलना करने पर अगर हम पश्चिमी बंगाल की संख्या देखें तो ज़्यादा है, परंतु ये सही नहीं है।
महाराष्ट्र में जनसंख्या पश्चिम बंगाल की तुलना में ज़्यादा है, यानी महाराष्ट्र में सबसे अधिक जनसंख्या है और बंगाल में जनसंख्या कम है। अगर आप मानचित्र देखो तो इसका उल्टा दिखता है कि महाराष्ट्र में जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में अधिक है। तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र को अधिक जनसंख्या क्यों कहा गया? दोस्तों, बात समझने वाली ये है कि अगर महाराष्ट्र में जनसंख्या अगर आपको कम दिख रहा है, मैप में कम दिखा है, तो इसका कारण है इसका क्षेत्रफल भी तो मान्य रखता है। लेकिन बंगाल में देखा जाए तो वहाँ पर क्षेत्रफल बहुत कम है, इसलिए जनसंख्या में अधिक नज़र आती है। लेकिन महाराष्ट्र में क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए जनसंख्या कम नज़र आती है। लेकिन वास्तविकता में देखें तो महाराष्ट्र में जनसंख्या पश्चिम बंगाल की तुलना में सबसे अधिक है। तो यह बात आप समझ गए होंगे कि फलस्वरूप जनसंख्या की स्थिति को केवल उनके संख्या के आधार पर मानकर हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्षेत्रफल का भी विचार करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि किसी भी देश, प्रदेश या देश की संख्या की तुलना जनसंख्या घनत्व द्वारा किया जा सकता है। यदि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का अगर हम मतलब जाने तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से आंकी जाती है कि जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति इकाई क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति की संख्या निवास करता है, और यह आमतौर पर लोगों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसे गणना के लिए सूत्र भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जनसंख्या का घनत्व और एक परिभाषा क्षेत्र इकाई में लोगों की कुल संख्या और उसी क्षेत्र विशेष पर कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या घनत्व का फार्मूला भी काफ़ी दिलचस्प है। चलिए एक एग्जाम्पल के अंतर्गत इसको समझने की हम कोशिश करें। अब देखिए बात करते हैं जनसंख्या की निर्धारित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में उस कुल क्षेत्रफल को विभाजित किया जाता है। यह प्रति वर्ग किलो क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या बताता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक जिले की जनसंख्या जो है 2,50,000 है। एक जिला की जनसंख्या 2,50,000 है, लेकिन वहाँ का क्षेत्रफल जो है 1,000 वर्ग किलोमीटर है। अब इस जिले की जनसंख्या के घनत्व की गणना इस प्रकार किया जा सकता है कि जैसे कि अगर 3 जीरो है इसको नीचे रखिए, यानी 1,000 को नीचे रखिए और 2,50,000 को ऊपर रखिए। 3 जीरो को काट दीजिए, अब देखिए कितना रह जाता है, सिर्फ 250 रह जाता है। यानी जनसंख्या का घनत्व जो हुआ 250 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। तो ये जो होता है जनसंख्या घनत्व, क्योंकि हम अब जैसे आपको समझाने की कोशिश भी किया था कि कोलकाता में यानी जो पश्चिम बंगाल में जनसंख्या कम है क्षेत्रफल के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में क्षेत्रफल के अंतर्गत जनसंख्या बहुत अधिक है। बेशकली आपको मानचित्र में ये लग रहा होगा कि सबसे अधिक डॉट जो है पश्चिम बंगाल में नज़र आ रही है और महाराष्ट्र में बहुत कम डॉट नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जनसंख्या के घनत्व को निर्धारित करना। अब इस मानचित्र में भी आप भली भांति समझ सकते हो कि भारत जनसंख्या घनत्व 2001 के जनगणना के अनुसार, और ये क्वेश्चन कई मानने में एग्जामिनर के लिए भी काफ़ी फेवरेट रहा है और हमेशा ये पूछता है सबसे कम जनसंख्या वाले देश, राज्य और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो यहाँ पर आप भली भांति समझ सकते हो कि अधिक जनसंख्या जो है केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं पर कम जनसंख्या की अगर बात हम करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी नज़र आ रहा होगा और जम्मू कश्मीर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शा रहा है और काफ़ी ज़रूरी भी है, ठीक है। ये मानचित्र भी आपको काफ़ी समझा सकता है और एग्जामिनर के पूछे गए सवाल या तो कम होता है जनसंख्या या अधिक होता है। तो इसके लिए आप इस बात को लिए समझ सकते हो कि अधिक जनसंख्या कहाँ है और कम जनसंख्या कहाँ है इस मानचित्र में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण को कौन कौन से कारक हैं जो काफ़ी प्रभावित करती है। देखिए जनसंख्या का वितरण असामान्य क्यों है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि जनसंख्या का वितरण असामान्य क्यों है। अगर सही बात करें, अगर हम जाने तो आप जर्नली से आप इस पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जनसंख्या का वितरण एक सामान्य इसलिए होता है क्योंकि आपने बात नोट किया होगा कि जनसंख्या वहीं निवास करती है जहां पर उनको संसाधन मिलता है
अगर मान लीजिए संसाधन आपके पास नहीं है तो आप इस क्षेत्र में रहोगे कैसे। कहते हैं आज भागा भाग ज़िंदगी में, आज इतनी मॉडर्नाइज दुनिया है, वहाँ पर अगर संसाधन ना हो तो लोगों को जो है चंद सेकेंडों में ही मृत्यु हो जाती है, चंद सेकेंडों में बहुत कुछ हो जाती है। इसलिए लोग संसाधन की तलाश में जो है किसी विशेष क्षेत्र में ही निवास करते हैं। और यह मानव प्राकृतिक है कि जहाँ संसाधन आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ लोग रहना अधिक पसंद करते हैं। और इन संसाधनों में मीठी पानी भी हो सकती है, उपजाऊ मिट्टी भी हो सकती है, भोजन भी हो सकता है, आश्रय भी हो सकता है और काम के अवसर आदि भी हो सकता है। और इन संसाधनों की उपलब्धता जो है भौगोलिक विशेषताओं द्वारा प्रभावित करता है, जो असामान्य वितरण के कारण है। इसलिए जनसंख्या का घनत्व और वितरण भी असामान्य है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रमुख वर्गों में रखे सकते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है सामाजिक आर्थिक। तो चलिए इन दो प्रमुख प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो पहला हमारा है प्राकृतिक कारक। यदि हम बात करें प्राकृतिक कारक की तो कहते हैं जनसंख्या के वितरण को घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्राकृतिक कारक यानी उच्चवाच, जलवायु और मिट्टी। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगर बात हम करें उच्चवाच की तो आप पहाड़ी क्षेत्र या नदी घाटी और सपाट मैदान इलाकों की दौरा कीजिए और आप क्या देखते हो कि पहाड़ी की तुलना में जो मैदानी भाग है उनमें जनसंख्या किस प्रकार निवास करती है। आप इस बात को साफ देखोगे कि मैदान की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में आबादी बहुत कम है, यानी मैदान की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में आबादी बहुत कम नजर आएगा। और किसी भी दिए गए क्षेत्र या उच्च और निम्न ऊंचाई के ढाल के बीच का अंतर उच्चवाच कहलाता है। यानी उच्च और निम्न ऊंचाई के ढाल के बीच के अंतर को हम उच्चवाच कहते हैं और उसे इंग्लिश में रिलीफ कहते हैं। और ये उच्चवाच ढाल वही की सुगमता को जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जो क्षेत्र ज़्यादा सुगम हो वह लोगों द्वारा बसावट से भरी होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। यही कारण है कि सपाट मैदान में ज़्यादा बसावट देखी जा सकती है, जबकि विहर उच्चवाच वाले पर्वतीय और पठारी भाग ऐसे नहीं हैं। अगर आप जनसंख्या के घनत्व और वितरण के उत्तर मैदान और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की तुलना करें तो आपको उच्चवाच का प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वहाँ निवास करती है जहाँ पर जो है सपाट ज़मीन होती है, सपाट मैदान होती है। और इस आप चित्र में भी देख सकते हो कि भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पर्वत, सिंधु गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, तो ये सारे चीज़ें जो है काफ़ी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होती है, जो आपके जो है स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जलवायु। देखिए जलवायु जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु की स्थिति भी होती है। अनुकूल जलवायु मनुष्य के रहने के लिए सुविधाजनक स्थिति प्रदान करती है। वही जनसंख्या के उच्च घनत्व एवं क्षेत्रों में ज़्यादा है जलवायु अनुकूल पाई जाती है। लेकिन कठोर जलवायु अर्थात बहुत गर्म, बहुत ठंडा, बहुत सूखा, बहुत नम क्षेत्रों में कम घनत्व वाले लोग रहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो होते हैं बिल्कुल ही इंसानों के रहने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। भारत में शुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान एवं अवधि ठंडा क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में निम्न जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। तो जलवायु जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है कहीं भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने के लिए। उसके पश्चात आता है मिट्टी यानी मृदा। देखिए मनुष्य कृषि के लिए मिट्टी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इसलिए उपजाऊ मृदा के क्षेत्रों में बड़ी आबादी का भरण पोषण कर सकता है। और यही कारण है कि उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्रों में जैसे उत्तर भारत और तटीय जलोढ़ मैदानों में जनसंख्या के उच्च घनत्व होते हैं, और दूसरी ओर कम उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुल हिस्सों में जनसंख्या का कम घनत्व होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जनसंख्या का घनत्व, यानी मृदा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है जनसंख्या के असामान्य वितरण के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक आर्थिक कारक। कहते हैं जनसंख्या के घनत्व व वितरण जो है निम्न सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर बात हम करें औद्योगिक और शहरीकरण,
तो औद्योगिक और शहरीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप हमेशा देखते ही हैं कि उद्योग धंधे वाली जगहों पर बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। तो जनरल सी बात है, जहाँ पर उद्योग धंधे लगे होते हैं वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर सुविधाएं उनको बखूबी प्राप्त हो जाता है। और वह शहरी क्षेत्रों में, नगरों में रहना पसंद करते हैं। खनिज संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र भी बड़ी जनसंख्या की आकर्षित करती है। यानी देखा जाए, खनिज संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र भी बड़ी जनसंख्या को आकर्षित करती है। झारखंड के खनन क्षेत्रों में बहुत घनी आबादी रहती है। यानी झारखंड के खनन क्षेत्र में अधिक जब आबादी इसलिए रहती है क्योंकि उनको जो है आसानी से यहाँ पर जो है रोजी रोटी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियाँ भी होती हैं जो रोजगार के अवसरों को काफ़ी बढ़ावा देता है। और इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इन क्षेत्रों में बेहतर है। हम जानते हैं कि भारत के बड़े नगर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और कई अन्य जनसंख्या के उच्च घनत्व के केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या इसलिए अधिक घनत्व है क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है परिवहन एवं संचार। देखिए, अन्य भागों की तुलना में देश के कुछ भागों में परिवहन संचार सुविधाओं के साथ उत्तरी मैदान क्षेत्र में परिवर्तन काफ़ी अच्छा रहा है, परंतु उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। देखा जाए तो परिवहन संचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहां आसानी से परिवहन का सुविधा और संचार की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां सार्वजनिक सुविधाओं का विकास अच्छा है, अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या घनत्व मिलती है। कभी कभी हम पाते हैं कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की भी घनी आबादी पाई जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही उपयुक्त कारक जो संयोजन में कार्य करते हैं। हम गंगा के मैदान में उच्च जनसंख्या घनत्व का उदाहरण ले सकते हैं, और यह कई कारकों के संयोजन के कारण है। जैसे चौरस मैदान है, यहाँ पर उपजाऊ मृदा है, अनुकूल जलवायु है, और औद्योगिकरण, शहरीकरण और अपेक्षाकृत अच्छी तरह से जो है परिवहन संचार के साधनों का विकास भी हुआ है। दूसरी ओर बिहार पहाड़ी इलाके, प्रतिकूल वातावरण में वहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ही विरल मिलती है, या जनसंख्या बहुत ही कम होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि परिवहन संचार काफ़ी महत्व रखता है। और कहते हैं मैदानी क्षेत्र, उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु, औद्योगिक शहरीकरण, काफ़ी अच्छी व्यवस्था होता है जनसंख्या का विकास करने के लिए। लेकिन इसके विपरीत अगर होगी तो जनसंख्या वहाँ पर निवास करना कभी भी पसंद नहीं करेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी जिस पे हमने यहाँ पर चर्चा किया, और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो, सहायता करना चाहते हो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करना ही आपका कर्तव्य है, और मेरा कर्तव्य है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा करूं। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा, और शायद कई ऐसे वीडियो होंगे जिससे आप अनभिज्ञ हो जाइएगा। तो सबसे अच्छा यही बात है, और सबसे समझदारी इसी में है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में चैनल को सेव करके रख लीजिए।